بدلتے موسم کے ساتھ بدلتی فضا کی اسموگ اور دھند نے ڈویژن کو دھندلا دیا۔ فضائی آلودگی میں سانس لینا محال ہو گیا۔ فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 405 پوائنٹس ریکارڈ، چنیوٹ کا AQI 258، جھنگ کا 249، ٹوبہ کا 248 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ شہری احتیاطی تدابیر اپنانے سے انکاری، بڑھتی اسموگ کے ساتھ بیماریوں کے حملے بھی تیز ہو گئے۔ ضلعی انتظامیہ بھی SOPs پر عمل درآمد کرانے میں ناکام نظر آنے لگی۔ اپڈیٹ کریں فیصل آباد کے موسم کے بارے میں۔ اسموگ اور دھند نے ڈویژن کو دھندلا دیا۔ فضائی آلودگی میں سانس لینا محال ہو گیا۔ فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 405 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ چنیوٹ کا AQI 258، جھنگ کا 249، ٹوبہ کا 248 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ شہری احتیاطی تدابیر اپنانے سے انکاری ہیں۔ بڑھتی اسموگ کے ساتھ بیماریوں کے حملے بھی تیز ہو گئے۔ ضلعی انتظامیہ بھی SOPs پر عمل درآمد کرانے میں ناکام نظر آنے لگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مریم، اپڈیٹ کیجیے گا فیصل آباد کے موسم کے حوالے سے۔ جی بالکل، فیصل آباد کے موسم کی بات کریں تو شہر فیصل آباد اس وقت نہ صرف اسموگ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فوگ کی لپیٹ میں بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ جیسے ہی موسم تبدیل ہوا ہے درجہ حرارت کے اندر بھی کمی آنے لگی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہیں۔ سردی کے موسم کا فیصل آبادی خاصے عرصے سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ گرمیاں جھیلی، اس کے بعد جو ہے خاصے پریشان بھی نظر آئے، لیکن جیسے ہی سردی کا آغاز ہوا ہے، درجہ حرارت میں کمی ہوئی ہے، تو جو سردی ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ اسموگ کا تحفہ جو ہے وہ لے کر آئی ہے، جو خاصی بیماریاں فیصل آبادیوں کو پریشان کر رہی ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے سانس کی بیماری ہے، سانس میں تنگی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آئی انفیکشن ہے جو کہ ایک بڑی وجہ بن رہی ہے۔ اس کی شکایات جو ہے وہ بھی اسپتالوں میں موصول کی جا رہی ہیں کہ شہری کی ایک بڑی تعداد جن کے اندر بچے اور بزرگ ہیں جو کہ اس کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے شہری غیر سنجیدہ نظر آتے ہیں، نہ تو ماسک کا استعمال کرتے ہیں، نہ ہی آنکھوں کو ڈھانپتے ہیں، اور اس کے علاوہ غیر ضروری اس سفر کے لیے جو ہے وہ بھی نکلا جاتا ہے، جبکہ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر اس وقت شہر فیصل آباد میں بات کریں تو صبح سے ہی اسموگ اور فوگ کا راج نظر آ رہا ہے۔ اس وقت شہر فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو کہ نہ صرف اسموگ ہے بلکہ فوگ بھی ہے، وہ اس وقت 405 پوائنٹ تک پہنچ چکی ہے۔ صبح کے اوقات میں 477 پوائنٹ تھے جو کہ اب کم ہوتی ہوئی 405 پوائنٹ تک پہنچ چکی ہے، لیکن یہ بھی خاصی زیادہ ہے کیونکہ اس میں نہ صرف اسموگ ہے بلکہ فوگ بھی ہے۔ تو فیصل آبادیوں سے ہم اس بات کی اپیل کر رہے ہیں بار بار کہ خدارہ ماسک کا استعمال ضرور کریں، خود کو اسموگ سے بچائیں، فوگ سے بچائیں، کیونکہ موسم تبدیل ہوتا ہے تو بیماریاں بھی اپنے ساتھ لے کے جو ہے وہ آتا ہے۔ اس کے اگر بات کریں تو شہر فیصل آباد میں فیصل آبادی جہاں احتیاط کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، ان وہیکلز کو گھروں سے باہر نکال رہے ہیں، ڈرائیور حضرات ان وہیکلز کو جو بڑے وہیکلز ہیں ان کو گھر باہر نکال رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ کاروبار چلانا ہے، لیکن اگر جان ہے تو جہان ہے۔ دھواں چھوڑتی ہوئی یہ گاڑیاں جو ہیں سب سے بڑی وجہ ہے اسموگ میں اضافے کی۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ بھٹوں کو زگ زگ نہ کیے جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ FWMC یا PHA کی ملازمین کی جانب سے کبھی گھاس پھوس کو تو کبھی کوڑے کو آگ لگانا جو ہے وہ معمول بن چکا ہے، جس کی وجہ سے اسموگ کے اندر مزید اضافہ جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہماری ضلع انتظامیہ کی جانب سے انتظامات صفر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ان کی جانب سے کوئی بھی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے، حتیٰ کہ عوام میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے بھی کوئی سیمینار کا انعقاد جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا کہ شہریوں کو اس بارے میں آگاہ کیا جائے، یا اس کے ساتھ ساتھ ماسک کی جو فراہمی ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے فری میں، کیونکہ ماسک کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ٹاسک کہ وہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے، اس کو ضرور پہنے تاکہ خود کو محفوظ رکھ سکے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر بات کریں موسم کی تبدیلی کی تو شہر فیصل آباد کا موسم تو تبدیل ہو گیا، لیکن محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر فیصل آباد میں بارش کا کوئی امکان جو ہے وہ آئندہ 24 گھنٹے کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ اس صورت میں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک بارش نہیں ہوگی اسموگ کی یہی صورتحال ضلع کرانے میں ناکام ہے۔ جی مریم، بہت شکریہ، اپڈیٹ کر رہی تھی۔ بات کریں جڑاوالا کے موسم کی تو آپ کو بتائیں کہ جڑاوالا شہر اور گرد و نواح میں بھی ہر سو دھند اور اسموگ کے ڈیرے، حد نگاہ متاثر، ٹریفک کی روانی بھی متاثر، طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایات۔ اپڈیٹ کریں جڑاوالا کے موسم کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ شہر اور گرد و نواح میں بھی ہر سو دھند اور اسموگ کے ڈیرے، حد نگاہ متاثر، ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو گئی۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ تفصیلات جانتے ہیں احمد ارسلان سے۔ جی احمد، اپڈیٹ کیجیے گا۔
बिल्कुल जड़ावाला और इसके गिरदोनवा को स्मोक ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। रोज बरोज स्मोक की जो शिद्दत है इसमें भी इजाफा होता नजर आ रहा है। आपको बताते चलें कि तकरीबन 230 से एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ गया है। मजीद जो तिब्बी माहिरीन हैं उनका भी यही कहना है कि बाहर निकलने से पहले मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और इसके साथ साथ आंखों को ठंडे पानी से धोया जा सकता है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि ये जो स्मोक है इसकी बड़ी वजह गाड़ियों से निकलता धुआं, फसलों की बाकियात को आग लगाना और इसके साथ साथ कूड़ा करकट को भी आग लगाना इसका सबब बना है, जिसकी वजह से स्मोक ने इतनी शिद्दत हो चुकी है जड़ावाला में कि शहरियों को सांस लेने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का भी सामना करना पड़ा है। आपको बताते चलें कि ये जो स्मोक है इसकी वजह से सांस लेने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। तिब्बी माहिरीन की बात की जाए, तिब्बी माहिरीन का यही कहना है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। और उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी स्मोक की बाइस शदीद मुतासिर हुई है। ट्रैफिक पुलिस ने और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि मोटरवे पुलिस ने भी बाकायदा तौर पर ये एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने के लिए बाकायदा तौर पर हदायत भी जारी की है कि शहरी जब सफ़र के लिए निकले तो एहतियाती तदाबीर पे अमल करें। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि शहरियों ने भी जो तिब्बी माहिरीन हैं शहरियों को भी एहतियात का मशवरा दिया है। जी अहमद अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फैसलाबाद के नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में बिजली वोल्टेज पूरे ना होने पर सिस्टम बैठ गया। बिजली का निजाम दरहम बरहम, जनरेटर भी खराब हो गए। अस्पताल इंतजामिया ने मजबूरन डायलिसिस यूनिट और मेन ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिए। आंखों, हड्डी, पट्ठा जोड़, गायनी, गुर्दा मसाना और जनरल सर्जरी समेत दीगर अमराज के ऑपरेशन रुक गए। मरीज इंतजार की सूली पर लटक गए। अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद के नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में बिजली वोल्टेज पूरे ना होने पर सिस्टम बैठ गया। बिजली का निजाम दरहम बरहम, जनरेटर भी खराब हो गए। अस्पताल इंतजामिया ने मजबूरन डायलिसिस यूनिट और मेन ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिए। आंखों, हड्डी, पट्ठा जोड़, गायनी, गुर्दा मसाना और जनरल सर्जरी समेत दीगर अमराज के ऑपरेशन रुक गए। मरीज इंतजार की सूली पर लटक गए। तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, नुसरत फतेह अली खान हॉस्पिटल जिसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया है, उसके साथ साथ इस वक्त तकरीबन 250 बेड पे मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रहा है। मगर यहाँ पे इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बिजली का जो है सबसे अहम इशू है, जिसके सबब इस वक्त मुख्तलिफ शुबा अमराज के डिपार्टमेंट जो है बंद पड़े हैं। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट नुसरत फतेह अली खान मौजूद हैं, डॉक्टर मसूद साहब, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताएं, कौन कौन से डिपार्टमेंट बिजली की वजह से बंद पड़े हैं? जी, इस वक्त हमने जो डिपार्टमेंट चल सकते हैं वो तो हमने शुरू कर दी हैं। बाकी डायलिसिस यूनिट जो है, HM सिस्टम जो है वो बिल्कुल क्लोज है। और सबसे बड़ा मेन इशू जो इस हॉस्पिटल का है वो इलेक्ट्रिसिटी है। जो ये हल होगा अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ठीक हो जाएगी। बताएं कि OT के वाले से बताएं, ऑपरेशन थिएटर के वाले से किस तरह चलाए जा रहे हैं? माइनर चीज़ें हो रही हैं, मेजर रुकी हुई। तो अब राब्ते में फेस्को वालों के साथ क्या कहते हैं फेस्को? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम राब्ते में हैं। उम्मीद तो काफ़ी है कि वो हमारी बात मान जाएंगे। अदरवाइज हम DC साहब को, CO साहब को मैंने इन्फॉर्म कर दिया हुआ है। आज बिल्कुल फेस्को काम के साथ राब्ते में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को, उसके साथ साथ CO फैसलाबाद को भी आगाह कर दिया गया है कि जल्द से जल्द ये मसला जो है वो हल करवाया जाए ताकि मरीजों को यहाँ पे मुकम्मल इलाज की सहूलियात दोबारा से फराहमी। जी अज़ादार, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन दफ्तर टाउट माफिया के निर्गे में टाउट साधालू अफराद के एक्साइज से काम का झांसा देकर भारी रकूम बटोरने लगे। महकमा एक्साइज हुकाम ने कार्रवाई की बजाय चुप साध ली। शहरी कहते हैं एक्साइज मुलाजमीन किसी भी काम के लिए कई चक्कर लगवाते हैं, मजबूरन टाउट माफिया का सहारा लेना पड़ता है। तफसीलात जानते हैं उमैर असमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा।
कि दीगर सरकारी महकमों की तरह महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में भी टाउट माफिया का राज है। एक्साइज दफातर के बाहर टाउटों की बड़ी तादाद मौजूद है। कोई भी शहरी अगर काम के लिए आता है, इनको इजाफी पैसे अदा करता है तो उसका काम हो जाता है, बसूरत दीगर उसे एक्साइज दफातर के चक्कर लगाना पड़ते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इनके हवाले से? अगर कोई आम शहरी जाता है उसको क्या मुश्किलात होती हैं? टाउट्स के हवाले से क्या कहते हैं? जी, आम शहरी जब भी जाता है यहाँ पे तो वो इसको रोल के रख देते हैं, कभी किसी चक्कर में, कभी किसी चक्कर में, कभी कहीं उनको कहते हैं कि जाएं। तो इस तरह उनका जो है एक टेम्परामेंट वो लूज़ हो जाता है और वो दिल शिकना हो जाता है कि हमारा काम ही हुआ। ये जो टाउट माफिया बाहर बैठा हुआ है, ये कुछ इजाफी पैसे चार्ज करके, हालांकि काम हमारा है और वो इजाफी पैसे चार्ज करके हमारे ही काम करवा रहे हैं और दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि इस के हवाले से एक अच्छा इक़दाम उठाए ताकि आम आवाम को भी अच्छे से अच्छा सहूलत मिले यहाँ पे, ताकि वो अपना काम करवा सके। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस काम के सिलसिले में आप यहाँ पे आए थे और क्या आपका काम हो गया है या फिर आपको भी दीगर लोगों की तरह दोबारा आने का कहा गया है? नहीं, यहाँ पे चक्कर लगवाते हैं। जो भी काम यहाँ से करवाने के लिए आते हैं तो जो मुतलका लोग बैठे हुए हैं वो चक्कर सिर्फ इसी लगवाते हैं कि ये टाउटों के पास जाएंगे, हम उनसे उनकी मिली भगत है, टाउट अपना पैसा बनाते हैं, काम तो करते कोई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल टाउटों के हाथों आम शहरी जो है वो परेशान है, जबकि महकमा एक्साइज हुक्काम जो है वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर सरकारी दफातर की तरह रीजनल पासपोर्ट ऑफिस फैसलाबाद को भी टाउट माफिया ने घेर लिया। सादा आलू शहरियों से 1 से 3 हजार रुपए तक लूटने लगे। तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल दीगर सरकारी दफातर की तरह पासपोर्ट ऑफिस के बाहर भी टाउट माफिया का राज बरकरार है। इस हवाले से मुतअद्दिद बार ऑपरेशंस के दावे किए गए कि टाउट माफिया का खात्मा कर दिया गया है, लेकिन सूरत हाल जो है वो जूं की तूं है। फैसलाबाद पासपोर्ट ऑफिस की बात कर ली जाए तो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर मौजूद टाउट माफिया जो है ये ना सिर्फ सादा लोग शहरियों को इजाफी रकम के साथ लूटने पर मजबूर है, बल्कि इसके साथ साथ शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई देते हैं, जिनका ये कहना है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों मौजूद टाउट माफिया जो हैं वो शहरियों से इजाफी रकम लूटते हैं। जबकि अगर डायरेक्ट पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश की जाए तो इन्हीं टाउट माफिया से मिली भगत के साथ सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो तरह तरह के ना सिर्फ रोकने के लिए हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसके साथ शहरियों की ख्वारी में भी इजाफा किया जाता है। इस हवाले से पासपोर्ट ऑफिस के बाहर मौजूद एक सरकारी खाली ग्राउंड जो है टाउट माफिया से भरा हुआ दिखाई देता है, जो कि CCTV के कैमरा को देखते ही भागते हुए भी दिखाई देते हैं। जबकि पासपोर्ट ऑफिस हुकाम का ये कहना है कि वक्तन फवक्तन जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती रहती है। ताहम टाउट माफिया की मौजूदगी के बायस शहरी न सिर्फ परेशान है, बल्कि शहरी इजाफी रकम देकर अपना काम करवाने पर भी मजबूर दिखाई देते हैं, चूँकि यही टाउट माफिया जो है मुस्तकिल तौर पर मिली भगत के साथ जो है हर शहरी को न सिर्फ परेशान करता है, बल्कि पहले परेशान किए जाने के बाद आसानियों का उम्मीद दिलाकर जो है शहरियों से इजाफी रकम बटोरी जाती है। पासपोर्ट के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो नॉर्मल पासपोर्ट और अर्जेंट पासपोर्ट पर जो है 1000 से 3000 रुपए तक इजाफी पासपोर्ट ऑफिस के बाहर मौजूद इन टाउट माफिया की जानिब से लिए जा रहे हैं। जी वकास, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद की तरह झंग के सरकारी दफातर में भी टाउट माफिया कल्चर ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। रिश्वत और ताखीर की वजह से शहरी माली और ज़हनी मुश्किलात का शिकार है। सरकारी दफातर में सुस्त रवि से शहरी मजबूरन टाउट से राबता करने पर मजबूर हैं। अपडेट कर रहे हैं, झंग के सरकारी दफातर में टाउट माफिया कल्चर ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। रिश्वत और ताखीर की वजह से शहरी माली और ज़हनी मुश्किलात का शिकार है। सरकारी दफातर में सुस्त रवि से शहरी मजबूरन टाउट से राबता करने पर मजबूर है। मजीद तफसीलात जानते हैं, अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंग के सरकारी इदारों में टाउट माफिया और रिश्वत सतानी के बाइस जो है वो शहरी खासियत तक मुश्किलात का शिकार हैं। दूर दराज के इलाकों से अपने कामों के सिलसिले के अंदर ज़िले हेडक्वार्टर में आने वाले अफराद जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो टाउट माफिया का निशाना बनने लगे हैं। इस हवाले से मरकजी सेक्रेटरी जनरल जो है किसान बोर्ड डॉक्टर अब्दुल जब्बार मौजूद हैं, इनसे बात करने की बताइएगा खासतौर पर जो दही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, अराजी सेंटर्स, फेस्को, दीगर मामलात में उनके वास्ते पड़ते हैं, कितनी मुश्किलात होती हैं ख़ुसूसी तौर पर टाउट माफिया का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस मुल्क का हर शहरी जानता है कि पाकिस्तान का कोई इदारा हो,
इस पंजाब का, इस ज़िला झंग का कोई एक भी ऐसा इदारा नहीं है, चाहे वो वफाकी गवर्नमेंट का है या सूबाई गवर्नमेंट का है, जहां पर लोग जो है वो अपने कामों के लिए जलील ख्वार होते हैं और नतीजतन वो जलालत से बचने के लिए वहाँ उन्हीं इदारों में, उन्हीं दफातर के अंदर एक टाउट बैठे होते हैं। टाउट जो है वो फिर देखते हैं कि जहाँ लाइनें लगी हुई हैं, जहाँ वेटिंग में लोग बैठे हुए हैं, फिर उनको वो कैच करते हैं और उनको लाइनों से बचाने के लिए वो उनके रेट तय करते हैं। कोई इदारा ले ले, वो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो एक्साइज एंड टैक्सेशन है, और वो कोई और सूबाई गवर्नमेंट का कोई भी इदारा है, इसी तरह वफाक का है, चाहे वो नादरा है, वापडा है, कोई और जो भी वफाक के इदारे हैं, ये सारे में एक टाउट माफिया का राज है। और बगैर टाउट माफिया के मैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को चैलेंज करता हूँ कि मुझे एक इदारा बता दें कि जहाँ बगैर रिश्वत के, बगैर उन टाउटों के, उनके थ्रू, बगैर उस चेन में चले बगैर उनका कोई काम हो जाए। लोग बेचारे देहातों से अपना खर्च करके, मोटरसाइकिल पर, कारों पर खर्च करके आते हैं, अपना टाइम निकाल कर आते हैं, अपना खर्च कह लें कि पूरा दिन ज़ाया करते हैं। वो जब एक दो दिन देखते हैं कि उसको एक कहते हैं जी आज साहब नहीं है, ऑफिसर जो है वो अपने दफातर में बैठते ही नहीं, वो दाएं बाएं बैठे होते हैं और उन्हीं टाउट माफिया के साथ उनका डायरेक्ट रब्ता है। जब वो कहते हैं कि जी हाँ इससे बात ओके हो गई है, इससे तय हो गया मामला, वो ऑफिसर को, चाहे वो कोई भी है, पुलिस डिपार्टमेंट है कोई, उन्हें कह देते हैं ओके है, तो वो फिर उनका। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। टाउट माफिया की तो आपको बताएं कि चिन्योट के सरकारी दफातर के बाहर टाउट और एजेंट माफिया का राज सरकारी मुलाजमीन से जायज और नाजायज काम करवाने के नाम पर सादा लू शहरियों को लूटने लगे। मुलाजमीन फाइलों पर एतराज लगाकर टाउट माफिया के लिए काम पैदा करने लगे। तफसीलात जानते हैं वकार घुम्मन से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। मुख्तलिफ सरकारी दफातर के बाहर और अंदर टाउट्स और एजेंट्स मौजूद हैं जो कि आने वाले साइलिन को काम जल्दी करवाने या जो इतराज़ात लगाए जाते हैं, बाज़ दफ़ा गैर ज़रूरी इतराज़ात लगाए जाते हैं जिनको हल करवाने के लिए ये टाउट्स अपनी खिदमात पेश करते हैं और शहरियों से, सादा लोगों से पैसे बटोरते हैं। वुकला जो कि बड़े बाअसर समझे जाते हैं, इनका कहना है कि ये भी टाउट्स के बगैर काम नहीं करवा सकते। क्या सूरत हाल है टाउटी की? आपके रेवेन्यू दफातर में यहाँ पे सब रजिस्ट्रार ऑफिस और दूसरे तीसरे मामला में भी टाउट्स नजर आते हैं। टाउट माफिया के हवाले से अगर हम यहाँ बात करें, अव्वल तो सबसे पहले तमाम सरकारी इदारों को अपने और ऑफिसर्स को अपने डोमेन में रह काम करना चाहिए। जब सरकारी ऑफिसर्स अपने डोमेन में काम नहीं करते तो टाउट माफिया को प्रमोशन मिलती है कि वो टाउट माफिया एक सादा लोगों को वर्गला कर, उनको पैसों का लालच देकर उन्हें कि हम शॉर्ट टर्म में आपका ये काम करवा देंगे, तो ये जो है ना इस वजह से प्रमोशन मिलती है टाउट माफिया को। यानी कोई भी शख्स कमीशन माफिया से, चाहे कोई रजिस्ट्रार के पास है, कोई कमीशन, कोई पटवारी हल्का है उसके पास जाना हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वापडा, अकाउंट ऑफिस, तमाम डिपार्टमेंट में जो है तमाम इस तरह के माफिया छाए हुए हैं और पब्लिक और सादा लोग जो हैं वो इस पे परेशान हाल है। बाज़ ऐसे दफातर हैं जहाँ पे जो अमला है वो जानबूझ के लोगों की फाइलों पे एतराज़ात लगाएगा, उनको चक्कर लगवाएगा, जिससे तंग आकर जो साइल है, वो शहरी है, वो कोशिश करता है कि किसी को कुछ ले दे के उसका काम फौरी तौर पर करवा दिया जाए। इस वक्त चिन्योट के भी तमाम सरकारी दफातर में तकरीबन ये जो तबका है टाउट्स, जिनको एजेंट्स कहा जाता है, ये मौजूद हैं और इनके सदे बाब के लिए, हल के लिए शहरियों का खात्मा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया वकार आपका। बाकी शहरों की तरह टोबा टेक्सिंग के सरकारी इदारों में भी टाउट माफिया सरगर्म। तहसील ऑफिस, नादरा, पासपोर्ट में टाउट माफिया के डेरे। रिश्वत और टाउट माफिया के बगैर जायज काम करवाना आम आदमी के लिए मुमकिन ना रहा। तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, अपडेट कीजिएगा। टोबा टेक्सिंग के सरकारी अदारों में टाउट माफिया सरगर्म है। वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट के जितने भी दफातर हैं वहाँ पर जो है वो अपने जायज़ काम करवाने के लिए भी शहरियों को जो है वो टाउट माफिया का सहारा लेना पड़ता है। टाउट माफिया के बगैर शहरियों के काम होना अब मुमकिन ही नहीं रहेगा। टोबा टेक्सिंग में खसूसी तौर पर जो है वो वफाकी महकमे जिनमें जो है वो पासपोर्ट दफ्तर, नादरा दफ्तर, इसी के साथ साथ तहसील दफ्तर, जहाँ पर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों साइलिन अपने काम के सिलसिले में आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो टाउट माफिया के बगैर जो है कोई भी काम शहरियों का तकमील तक नहीं पहुँच पाता है। टाउट माफिया के बगैर जो है वो सरकारी दफातर में काम करवाना अब मुमकिन ही नहीं रहा है। शहरियों ने इस पर जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और हुकाम बाला से नोटिस देने का मुतालबा किया है कि तमाम सरकारी दफातर में जो है वो
टाउट माफिया के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जाए, सरकारी दफातर से टाउट माफिया की जो है वो खात्मे के लिए ऑपरेशन किया जाए और जो है वो शहरियों को सहूलत देने के लिए यहाँ पर जो है वो मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए और टाउट माफिया के खात्मे के बाद जो है वो शहरी जो है वो दूर दराज के इलाकों से आने वाले मुख्तलिफ अपने अगराज से काम के लिए आने वाले जो शहरी हैं उनको सहूलियात मुयसर आएंगी। शहरियों ने हुकाम वाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया और इन दफातर से खुसूसी तौर पर तहसील दफातर में पटवार खाने में जो है वो शहरियों को ज़लील और रुसवा होना पड़ता है। शहरी जो है वो घंटों जो है वो अपने जायज़ काम के लिए भी जो है वो ज़लील ख्वार हो जाते हैं। टाउट माफिया जो है वो उनके बगैर उनका काम होना मुमकिन नहीं रहा है। शहरियों ने हुकाम वाला से ये मुतालबा किया कि सरकारी दफातर से टाउट माफिया का फिलफौर खात्मा किया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सकें। जी अहमद नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताएं कि सरकारी स्कूल्स की प्राइवेट मालिकान को आउटसोर्सिंग का मामला। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद के सरकारी स्कूल से 590 असातिज़ा की सीटें खत्म कर दी। दूसरे फेज में 138 स्कूल प्राइवेट मालिकान के हवाले करने से जिला भर में मजीद 552 असातिज़ा की सीटें खत्म हो जाएंगी। तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी अपडेट कीजिएगा। समेत पंजाब भर में सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट मालिकान के सुपुर्द करने के नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। तमाम जो अजला हैं वहाँ से असातिज़ा की सीटें जो हैं वो ख़त्म करना शुरू कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल के मुताबिक फैसलाबाद के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें से 590 असातिज़ा की सीटें जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं, जबकि दूसरे मरहले में मज़ीद 138 स्कूल प्राइवेट ऑनर के हवाले किए जा रहे हैं, तो वहाँ से भी मज़ीद 550 सीटें जो हैं वो खाली हो जाएंगी। इस तरह फैसलाबाद में मजमूई तौर पर 26,000 असातिज़ा की जो असामियाँ मौजूद थी उनमें से अब सिर्फ 25,000 सीटें जो हैं वो बाकी रह चुकी हैं। इस हवाले से खाली सीटों की तादाद भी बगैर भर्तियों के कम होना शुरू हो गई है। फैसलाबाद में सरकारी स्कूल में 6,500 सीटें खाली थी, लेकिन इस वक्त 5,900 के करीब जो सीटें हैं वो असातिज़ा की खाली हैं, क्योंकि 590 सीटें सिरे से ख़त्म कर दी गई। इस तरह से अगले मरहले में मज़ीद 550 सीटें जो हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी। असातिज़ा तंजीमों की तरफ से जो महकमा तालीम से वाबस्ता तंजीमें हैं उनका कहना है कि हुकूमत सीटें ख़त्म करने के बजाय नए असातिज़ा भर्ती करे ताकि गवर्नमेंट स्कूल में असातिज़ा की खाली सीटें जो हैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए नए असातिज़ा मौजूद हों। जी जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। जिला कौंसिल फैसलाबाद के मुलाजमीन का एहतजाज बदस्तूर जारी। मुलाजमीन ने अजाजिया ना मिलने पर कौंसिल की तालाबंदी कर दी। मुलाजमीन का कहना है जिला कौंसिल हुकाम तनख्वाह के साथ साथ प्रमोशन के मामलात भी नहीं निपटा रहे। मुजाहिरीन ने मसला हल करने की यकीन दहानी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। मुलाजमीन का जिला कौंसिल मुलाजमीन का जो एहतजाज है वो अभी भी चल रहा है। सुबह 9 बजे से तालाबंदी की हुई है, कोई भी दफ्तर नहीं खुलने दिया गया। मुतालबात ये है कि अजाजिया दिया जाए, प्रमोशन दी जाए। मुलाजिम हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा एहतजाज क्यों किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वाला, हमारी प्रमोशन का साल 17 से अब तक पेंडिंग पड़ा है, जिसको अफसर बाला के पास जाते हैं, लेके मिन्नतें करते हैं, वो अच्छा जी आप अगले हफ्ते हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, करते करते 4-5 साल गुजर गए हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। उसके बाद एजाजिया की गवर्नमेंट पंजाब ने भी अप्रूवल दिया कि एजाजिया मुलाजिम जिन्होंने ईद पे या रमज़ान में मंडियों में ड्यूटियां की हैं उनको एजाजिया दिया जाए, लेकिन वो भी अभी तक किसी मुलाजिम को नहीं दिया जा रहा है। बाकी महकमों ने दे भी दिया, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में किसी को नहीं दिया जा रहा है। मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो एहतजाज पर उतर आए हैं। आज जिला कौंसिल में किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटीज़ नहीं होगी क्योंकि ताले लगा दिए गए हैं। जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। कि महकमा रेलवे ने माजी के नाखुशगवार वाकयात से सबक ना सीखा। रीजन भर में 50 से ज्यादा बगैर गेट मेन रेलवे क्रॉसिंग मौजूद, बेशतर फाटकों के गिरदोनवा गेट तक मौजूद ही नहीं। तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। रेलवे ने माजी में होने वाले नाखुशगवार वाकयात से सबक ना सीखा। फैसलाबाद रीजन भर में 50 से जायद अनमैन फाटक मौजूद हैं। ऐसे फाटक जहां पर ना तो गेट है और ना ही गेटमैन। स्मोक जिस अंदाज से पड़ रही है, ऐसे में अनमैन फाटक नाखुशगवार वाकयात को दावत दे रहे हैं। महकमा रेलवे की जानिब से अनमैन फाटकों का हल जो है वो ताहाल नहीं निकाला जा सका। चन्योट होल
इसके साथ साथ जो है वो जंग हो, टोबा हो और फैसला आबाद के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां पर अनमैन फाटक मौजूद है। स्मोक के इस टाइम में जो है वो अनमैन फाटकों पर मजीद नाखुशगवार वाकयात जो हैं वो रोनमा हो सकते हैं, मगर इसके बावजूद महकमा रेलवे ने आंखें मूंद रखी है। अनमैन फाटकों पर ना तो गेट लगाए जा रहे हैं और ना ही इसके साथ साथ गेटमैन खड़ा किया जा रहा है। अहले इलाका का ये कहना है, जो अनमैन फाटकों के गिरदोनुमा मकीन हैं, उनका कहना है कि अक्सर औकात जो है वो नाखुशगवार वाकयात रोनमा होते हैं और लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल से फाटक क्रॉस करते हैं, क्योंकि फाटकों पर गेट मौजूद नहीं है और ना ही गेटमैन मौजूद है, जिसकी वजह से आए रोज नाखुशगवार वाकयात रोनमा हो रहे हैं। महकमा रेलवे की जानिब से रीजन भर में 50 से ज्यादा अनमैन फाटकों को तहाल जो है वो ना तो वहां पर गेट लगाए जा सके हैं और ना ही वहां पर गेट मैन जो है वो खड़ा। जी अवैस अली, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी जानिब टोबर टेक्सिंग में रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त के दौरान फाटक बंद होने से ट्रैफिक मसाइल में इजाफा होने लगा। गाड़ियों की तवील कतारें लगने से मरीजों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी अपडेट कीजिएगा। टोबर टेक्सिंग में मोटरवे M4 और M3 इंटरचेंज होने की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव खासा बढ़ गया है। टोबर टेक्सिंग में रेलवे फाटक पर जब ट्रेन आती है तो फाटक बंद होने की वजह से ट्रैफिक खासी बंद रहती है। ट्रैफिक में मुसलसल मसाइल में इजाफा हो रहा है और जो मुतबादिल रास्ते हैं वहाँ पर भी ट्रैफिक ब्लॉक नजर आती है। ये शहबाज चौक पर रेलवे फाटक है, जहाँ पर ट्रेन आने की वजह से इसको आधा घंटा तक ये बंद रहती है और यहाँ पर ट्रैफिक की तवील कतारें लग जाती हैं। स्मोक भी है और बिलाशुबा ट्रैफिक अगर आधा घंटा ब्लॉक रहेगी तो स्मोक में भी इजाफा होगा। कुछ शहरी से बात करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा, जब फाटक बंद होता है तो परेशानी क्या होती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब फाटक बंद होता है ना, आधा घंटा ट्रैफिक जो है ना बंद होती है। तो हमारा तो यही गवर्नमेंट से मुतालबा है, ओवरहेड ब्रिज की सहूलत हमें भी दी जाए जैसे चीचा वतनी वालों को दी है। तो छुट्टी का स्कूल के बच्चों का छुट्टी का टाइम भी वही होता है, तो हम तो इधर जलील होते हैं, खज्जल खुआर होते हैं, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए मेहरबानी फरमा कर हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है, चीचा वतनी वालों की तरह हमें भी पुल की सहूलत मुयसर की जाए। दिन के औकात में या शाम के औकात में मजमूई तौर पर 5 ट्रेनें गुजरती हैं और 5 ट्रेन जब गुजरती हैं तो ये फाटक बंद रहता है और टोबर टैक्सी के शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ रहा है। इस मसले में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ओवरहेड ब्रिज बनाया। जी मुबशिर, बहुत शुक्रिया आपका। कि सब्जी मंडी में सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के जाते ही तजावजात का राज कायम हो गया। मुतअद्दिद बार निशानदही के बावजूद मंडी के ताजिर में ना मानो की रविश पर कायम है और शहरियों के लिए गुजरना मुश्किल हो गया। एक दुकान के बाहर 15-15 फीट तक तजावजात कायम है। अपडेट कर रहे हैं, सब्जी मंडी में सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के जाते ही तजावजात का राज कायम हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल, अपडेट कीजिएगा। शहर चिन्योट के अंदर सब्जी मंडी में सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के तबादले के फौरन बाद ही तजावुजात की भरमार देखने को आई है। सब्जी मंडी के अंदर मुतादिद बार मार्केट कमेटी की जानिब से निशानदही की गई है दुकानदारों को, उसके बावजूद दुकानदार मैं न मानो की रविश पे कायम है। मेरा कैमरामैन अली ज़ैफ़ दिखा सके तो इस वक्त रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। शहरियों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। हर दुकानदार की जानिब से मंडी के अंदर 15 से 20 फुट तक तजावुजात की गई हैं, जबकि सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की जानिब से निशानदही की गई थी कि उससे बाहर जो है तजावुजात नहीं की जा सकती। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। इतना ज़्यादा मंडी में रस्ते बंद है, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा मसले बंद है। जो रेड़ियाँ लगी हुई है बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, आने जाने में बहुत मुश्किलात पैदा होती हैं। क्या मुतालबा करेंगे? इसलिए कि कमेटी हमें ये मुतालबा है कि इनको साइड पे किया जाए और क्या रोड वो निकली है, क्या कहूँ कि घरेलू भी और सारे भी आदमी आते हैं, इसलिए वो जो है ना मसला बनता है। जी बिल्कुल, शहरी खासे परेशानी में मुब्तला है। शहरियों का यही मुतालबा है कि मंडी के अंदर। जी कुमैल, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत ने हज दरखास्तें वसूल करने का शेड्यूल जारी कर दिया। सरकारी स्कीम के तहत जाने वाले आज़मीन से दरखास्तों की वसूली का आगाज 18 नवंबर से होगा। आज़मीन हज 3 दिसंबर तक मुकर्ररा बैंक्स में हज दरखास्तें जमा करवा सकेंगे। अपडेट कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत ने हज दरखास्तें वसूल करने का शेड्यूल जारी कर दिया। सरकारी स्कीम के तहत जाने वाले आज़मीन से दरखास्तों की वसूली का आगाज 18 नवंबर से होगा। हुकूमत पंजाब ने 6 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर फहीम आफ्ताब को वीसी जंग यूनिवर्सिटी तैनात किया गया।
महकमा हायर एजुकेशन ने तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब ने 6 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर फहीम आफ्ताब को वीसी जंग यूनिवर्सिटी तैनात किया गया। महकमा हायर एजुकेशन ने तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुनिया में आज शुगर से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद आवाम को मर्ज से बचाना है। माहिरीन का कहना है कि बेहतर खुराक इस्तेमाल न करने से हर साल शुगर के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। शुगर से निजात, सेहतमंद हयात। शुगर ये बीमारी उस वक्त पैदा होती है जब जिस्म अपने अंदर मौजूद शक्कर को हल करके खून में शामिल नहीं कर पाता। उसकी पेचीदगी की वजह से दिल के दौरे, फालिज, नाबीनापन, गुर्दे नकारा होने और पाँव और टांगे कटने का खतरा पैदा हो सकता है। माहिर अमराज शुगर और दिल डॉक्टर नसीरुद्दीन का कहना है कि हजारों की तादाद में मर्द, खवातीन और अब तो नौजवान भी शुगर की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। ये तशवीशनाक सूरत हाल है। इसकी रोकथाम के लिए तमाम अफराद को अपना तर्ज जिंदगी तब्दील करना होगा। हमें एहसास करना होगा, इसलिए कि इसका जो, जैसे मैंने बताया कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में ये नहीं कि एक इंसान 40 साल हो गया वो वॉक करना शुरू कर दी, ये मसला नहीं है। मसला आज की माँ को ये सोचना है कि मैं अपने बच्चे को क्या खाना खिला रही हूँ। हमारी मुआशरत में एक बराए नाम जिसको मक्खन का नाम दे दिया गया, पता नहीं क्या केमिकल है। बाजार की डबल रोटियां, पापे, ये सब को मैं अनाउंस करता हूं कि सब अनहेल्दी है। घर की चीजें बनाएं, घर का खाना खिलाएं। साफ खुराक, वर्जिश और एहतियात लाजमी है। खवातीन को चाहिए अपने घर वालों को साफ खुराक खिलाएं। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41।